भाई, are you there? जी भाई जी। जब भाई जोसेफ बेंजामिन रूथ और नोमी के परिवार के बारे में बांट रहा, when brother Joseph was sharing about the family of Ruth and Naomi, जब जोसेफ बेंजामिन भाई रूथ और नोमी के परिवार के बारे में बांट रहे थे, so I was thinking that the Bible is a book of stories of so many families. मैं सोच रहा था कि बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे परिवारों की कहानियां हैं। And even in today's message, we'll be looking at a family. और आज के संदेश में भी एक परिवार के बारे में देखेंगे। And God began human fellowship through a family. और परमेश्वर ने मनुष्य की संगति एक परिवार से करी। God's family and our own family, there are similar situations in them. और परमेश्वर के परिवार में और हमारे अपने परिवार में एक जैसी समानताएं हैं। Yeah, the family is also a small model of an assembly because the Lord said, where two or three are gathered in my name, I'm there in their midst. और एक परिवार एक मंडली को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। Families make up assemblies. और परिवार मंडली को बनाते हैं। So if the family unit is spiritually healthy and strong, assembly also will be healthy and strong. तो यदि परिवार एक इकाई के रूप में आत्मिक रीति से स्वस्थ और सामर्थी होगी, तो मंडली भी स्वस्थ होगी। And if there is confusion and bitterness and sin in the family, it will also translate into the assembly. Assembly will be a reflection of that. और यदि परिवार में जलन होगी और पाप होगा और गड़बड़ियां होंगी, तो ये सारी बातें मंडली में भी आएंगी। And so even below that, if my personal life is having these issues, then they will also translate into my family and then into the assembly. और इससे भी अलग कि यदि मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये बातें हैं, तो ये बातें मेरे परिवार में आएंगी और परिवार से मंडली में आएंगी। Today we want to look at a family that had an amazing beginning but a very tragic end. आज एक परिवार के बारे में देखेंगे जिसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत बहुत दुखद है। It is one of the few families in the Bible which were built in the perfect will of God. और बाइबल में कुछ परिवारों में से एक ऐसा परिवार है जो परमेश्वर की एकदम सिद्ध इच्छा में शुरुआत हुई, जिसकी The family of Isaac and Rebekah. इसाक और रेबेका का परिवार। There are two families in Genesis built in the perfect will of God. दो परिवार है उत्पत्ति में जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में शुरुआत हुई, जिनकी Family of Adam and Eve and the family of Isaac and Rebekah. आदम और हव्वा का परिवार और इसाक और रेबेका का परिवार। In fact, Isaac and Rebekah's marriage is the classic example of how a believer should choose a life partner. और इसाक और रेबेका की जो कहानी है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को चुने। But it also teaches me that we should not only get married in the will of God, which is vitally important. लेकिन ये कहानी ना केवल मुझे ये बात सिखाती है कि एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा में उसका विवाह हो, जो बहुत जरूरी है, But they must also continue in the will of God till the very end. बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा में अंत तक बने रहे, जो बहुत जरूरी है। It is a very sad thing that people do not marry in God's will. ये बहुत दुख की बात है कि लोग प्रभु की इच्छा में शादी नहीं करते। My limited spiritual experience has shown me that generally maximum believers do not seek God's will in their marriage. मेरी सीमित अनुभव में मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग अपने विवाह के समय में प्रभु की इच्छा को नहीं खोजते। Or they put their own will when to get married, or lots of parameters they bring in, and that can create a huge disaster in your life. और वो अपनी इच्छा में और बहुत सारी अलग अलग बातों को अपने विवाह में ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, और परिणाम स्वरूप बहुत नुकसान होता है। But the other big danger is if you do not continue in God's will, that can also bring a great disaster. और इससे अलग एक और खतरा है कि यदि आप विवाह के बाद परमेश्वर की इच्छा में बने ना रहो, तो इससे और भी बड़े नुकसान होते हैं। The Warren Frisbee says, भाई वॉरेन फ्रिस्बी कहते हैं, a good marriage is not only in finding the right partner,
एक अच्छा विवाह ना केवल ये है कि एक अच्छा जीवन साथी चुने प्रभु की इच्छा में, but in becoming the right life partner. बल्कि एक राइट पार्टनर, एक सही जीवन साथी बन जाएं। Yeah, so it is a process that goes on for a lifetime. और ये एक प्रक्रिया है जो पूरे जीवन भर चलती है। So let us look at this amazing and a sad story. It is in Genesis chapter 27, verse. Only read. It is an entire chapter, but let's read only the first 5 verses to give us a context. और इस अद्भुत विवाह के बारे में जिसका अंत बहुत दुखद है, वो देखेंगे। और यह है उत्पत्ति 27 अध्याय और उसकी 5वीं आयत भाई। 1 से 5 उत्पत्ति 27। मैं पढ़ूं भाई? हाँ जी। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए तू अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता। बस Dear Lord, please wash and cleanse me in your blood. प्रिय परमेश्वर, कृपया करके मुझे अपने बेशकीमती लहू से धो दे। And Lord, please take me in the complete control of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण में रखे मुझे। Lord, you know all my limitations of language and talent. प्रभु मेरी सारी भाषा की और वरदान की सीमितताओं को जानते हैं। But I pray, Lord, that I may be able to be your mouth to speak to your people. बल्कि मैं तेरे लिए मुंह बन जाऊं ताकि आप परमेश्वर से बात करें। No one may go back from here empty-handed. कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए। Bring real transformation, beginning from my life and my family. और एकदम बड़ा बदलाव लेके आए और इसकी शुरुआत मेरे और मेरे परिवार से करें। Holy Spirit, only you can do it. पवित्र आत्मा जी, केवल आप ये कर सकते हैं। Keep me and my brother in complete one mind and one spirit. मुझे और मेरे भाई को एक मनता में और एक आत्मा में रखें। And use us for your glory. In Jesus' name we pray. और हमें आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Now, so 2 marriages, Genesis, the perfect will of God. और उत्पत्ति में 2 शादियां हैं जो प्रभु की बहुत इच्छा में, बिल्कुल सिद्ध इच्छा में है। Paul says in Galatians, having begun in the spirit, do you want to end in the flesh? और पौलुस गलतियों में कहता है कि तुमने आत्मा में तो शुरुआत की, अब शरीर में अंत करना चाहते हो। Both these marriages began in the spirit and ended in the flesh. दोनों शादियां आत्मा में शुरुआत हुई और शरीर में इनका अंत हुआ। They allowed sin to fester in their homes, and that led to a big blast in both the families. और इन्होंने अपने परिवार में पाप को आने दिया और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों परिवारों में बड़ा नाश आया। In Isaac and Rebekah's family, it was a festering sin for about 60 years. और रेबेका और इसाक के परिवार में तो 60 साल से ये पाप पनप रहा था इनके परिवार में। It is quite possible for a believer to begin life in the spirit and totally end in the flesh. और ये पूरी तरह संभव है एक विश्वासी के लिए अपने जीवन की शुरुआत आत्मा में करे और पूरी रीति से अंत शरीर में करे। So the scene opens up in front of us in Genesis 27. और ये दृश्य 27 अध्याय में शुरू होता है। Isaac is in bed, he's nearly blind, and he's thinking that I'm about to die. और इसाक बूढ़ा हो गया है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ। They say he was about 140 years old, but Martin Luther says that he's 137 years old. और वो कहते हैं कि उसकी उम्र 140 थी। और कौन सा भाई? मार्टिन लूथर कहता है कि वो 137 साल का था। So if you take the numerical the calculations people have done, Esau and Jacob are around 70 plus years, 77 years old. और यदि आप गणना करें तो एसाव और याकूब करीबन 70 या 77 साल के थे।
Now, Esau is a very good hunter. He hunts for venison, deer meat. और एसाव एक बहुत अच्छा शिकारी है और वो एक हिरन का शिकार करता है। So Esau loves him for that. Esau loves him for only that thing, hunting deer meat. और इज़हाक एसाव को प्यार करता है और सिर्फ एक बात के लिए प्यार करता है, हिरन के मांस के लिए प्यार This करता has है। been a long time back. Turn with me to Genesis 25 and verse 28. Genesis 25, 28. इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 25 और उसकी 28वीं आयत। Now, to give you a background, Isaac was 60 years old when the children were born, twins were born. और यदि आपको पृष्ठभूमि बताऊं तो इज़हाक 60 साल का था जब बच्चे पैदा हुए। So let us assume that Esau started hunting by the age of 15. So Isaac's about 75 years old when this incident is happening in Genesis 25, 28. इज़हाक एसाव के एहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। It's very clear that he loved Esau because he ate venison. और ये बहुत साफ है, इज़हाक एसाव से इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो हिरन का मांस खिलाया करता था। That point, that the thing of gluttony was there in him even many years back. और ये पेटूपन का पाप उसके जीवन में उससे कई साल पहले से था। But it was like the very early stages. और ये अपने शुरुआती दिनों में था। Rebecca, on the other hand, loved Jacob, partly because God had promised the birthright to Jacob and she was probably a little more spiritual. और रेबेका याकूब से इसलिए प्यार करती थी क्योंकि परमेश्वर ने पहलौठे का अधिकार याकूब को दिया था। Also because Esau was a hunter and Jacob was a more homely man, he would spend time with his mama, so he was more of a mama's boy. और ये एसाव था, वो जंगल में रहता था, शिकार करता था, और याकूब घर पे रहता था और वो अपनी माँ का लाडला बेटा था। So about 60 years from what we have read, partiality had already started in this home. तो 60 सालों से पहले इनके परिवार में पक्षपात होना शुरू हो गया था। Two groups had started forming, Isaac and Esau, Rebecca and Jacob. इनके परिवार में दो ग्रुप बट गए थे, इज़हाक और एसाव का, और रेबेका का और याकूब का। And over time we see that this division line became even stronger and harder. और ये बंटवारा और गहरा होता चला गया। So in 27, Isaac says to his son, I'm about to die. Get me this tasty meat. I may eat of it, bless you, and die. और 27वें अध्याय में इज़हाक अपने पुत्र एसाव से कहता है, मेरे लिए ये बहुत स्वादिष्ट खाना मांस बना दे ताकि मैं इसे खाकर मर जाऊं। Now please understand that he was totally wrong. He was going to die. He died at the age of 180. So he was 40 years off the mark. तो आप ध्यान दीजिए, वो एकदम गलत था। वो इस समय नहीं मरने वाला था, वो तो 40 साल के बाद मरेगा। So he was. But look at this man, he's about to die. Even a worldly man, when they die, they gather their family, they give them last instructions. और इस आदमी को देखिए, एक संसारिक आदमी भी जब वो मरने वाला होता है तो वो अपने परिवार को इकट्ठा करता है, उनको निर्देश देता है। But all he wants is to have tasty meat. I may not get it in heaven. और ये आदमी सिर्फ क्या चाहता है, ताकि मैं एक स्वादिष्ट मांस खा सकूं जो मुझे स्वर्ग में नहीं मिलेगा। And he will give him a blessing. Now please understand that oral blessing was like reading the will to him. और वो उसको आशीष देना चाहता था, और आशीष देने का मतलब ये है कि उनको अपनी संपत्ति उनके नाम कर जाना। And so in a sense, Esau was very greedy for that, so he was also a party to the whole thing. और एसाव का एक लालच था इसके प्रति, उन सब के प्रति, और वो भी इसकी बात में शामिल था। Isaac was not just blinded in the eyes, Isaac was blinded by lust for food. इज़हाक ना केवल आंखों से अंधा था, बल्कि वो खाने के पेटूपन के में भी वो अंधा था। And in this lust blindness, he couldn't see what am I doing. और वो अपने अंधेपन में वो ये देख नहीं सका कि मैं कर क्या रहा हूं। What he is doing is beyond words. और जो वो कर रहा था वो शब्दों से बाहर था। This man
This is the same Isaac who was the very representation of Jesus Christ on the cross. He gave himself in the will of God to be sacrificed on the altar. और ये इज़हाक प्रवेश रिपीट कर दे भाई से। This is the same Isaac who was willing to sacrifice himself in God's will. और ये वही इज़हाक था जो प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार था। वो यीशु को दिखाता था। He was the very picture of Christ on the cross in all his glory. वो तो मसीह के क्रूस के ऊपर अपनी पूरी महिमा में उसकी एक तस्वीर था इसाक। This is the same Isaac who married in God's will only on trust in God's will. ये वही इज़हाक था जिसने प्रभु की प्रतिज्ञा के आधार पे बिल्कुल प्रभु की ओर देखते हुए शादी करी थी रेबेका से। This is the same Isaac who is the pathetic, gluttonous old man. और ये वही इज़हाक है अब इतना पेटू हो चुका है वो। There is no spirituality seen in his life today. उसके जीवन में अब कोई आत्मिकता दिखाई नहीं देती। Blinded by lust. और अपनी लालसा से वो अंधा हो चुका है। It is like the Sodomites. When they were blinded, they didn't think, why am I blind? They still continued to seek the door in their lust. वो सोदोम के निवासियों की तरह अंधा हो गया था, जो इतने अंधे हो गए थे अपनी लालसा में कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्यों वो क्यों अंधे हो गए हैं। His lust blinded him to God's will. God had clearly said the elder will serve the younger. The birthright belongs to Jacob by God's grace. उसकी लालसा ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो प्रभु की इच्छा के प्रति अंधा हो गया था। प्रभु ने तो उसे साफ कहा था कि छोटे के पास पहलौठे का अधिकार होगा। This man who had started in the spirit, in the will of God, was ending in the flesh in complete carnality. इस आदमी ने शुरुआत तो प्रभु की इच्छा में करी, लेकिन अंत बिल्कुल शारीरिकता में कर रहा है। What about Rebecca? रेबेका के बारे में क्या? Rebecca was overhearing. रेबेका इनकी बात सुन रही थी। She heard him give the instructions to Esau. उसने ईसाव की बातें सुनी कि इज़हाक ईसाव को क्या निर्देश दे रहा है। The Bana says that she was a proud, scheming, deceitful woman who hears conversations behind keyholes. और बारहाउस बताता है कि वो एक बहुत शातिर और तेज दिमाग वाली स्त्री थी जो पीछे से बातें सुना करती थी। वो क्या बोलते हैं ना, keyhole से बात सुनती थी। She used to hear it from the keyhole. वो छेद से दरवाजे में जो चाबी का छेद होता है उससे वो बात कान लगा के बात सुना करती थी। This is the same Rebecca who was the only believer in her family. ये वही रेबेका है जो अपने परिवार में केवल इकलौती विश्वासी थी। She was such an amazing believer that she made so many camels to drink water. It is very, very difficult to do. ये वही रेबेका है जिसने इतने सारे ऊंटों को पानी पिला दिया जो बहुत कठिन काम है। In which there was no selfish purpose, no deceitfulness. और ऊंटों को पानी पिलाने के काम में उसका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं था। This is the same Rebecca who left all only by faith in God's will and went with Eliezer to Isaac. और ये वही रेबेका है जो विश्वास से उसने सब कुछ छोड़ दिया, एलिएजर के साथ चली गई। And married in the perfect will of God. और प्रभु की सिद्ध इच्छा में शादी करी। The same Rebecca who is a deceiver today. वही रेबेका आज धोखेबाज है। And she taught the same tricks to her own chick. और वो यही तरकीबें अपने बेटे को सिखा रही है। अपने चूजे को सिखा दी। अपने चूजे को सिखा रही है। And so now there are two teams, Isaac and Esau, Rebecca and Jacob. अब दो योजनाएं हैं, इज़हाक और एसाव और रेबेका और याकूब। And this partiality had begun nearly 60 years back. और ये पक्षपात करना 60 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। Whenever partiality comes in families, it always leads to division, distrust and deception. और जब कभी परिवार में पक्षपात आता है तो परिवार बट जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करते हैं और नाश आता है।
That is why James says, show not any partiality, because it can happen in the assembly. It happens in the assembly. और याकूब कहता है कि पक्षपात मत करो, क्योंकि मंडली में होता है और मंडली में ऐसा होता है। Esau says to Isaac, Papa, what about me? What is going to happen to me? Isaac says, fear not, I am. Nothing will happen to you. और इसहाक को कहता है, पापा मेरा क्या होगा? इसहाक बोलता है, कुछ नहीं, मैं हूं ना। Jacob says to Rebekah, Mommy, what about me? What will happen to me? She says, fear not, I will look after your concerns. और याकूब कहता है अपनी माँ से कि मम्मी मेरा क्या होगा? मम्मी कहती है, मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगी। This was a very spiritual family when they began. और ये परिवार शुरुआत में बहुत आत्मिक परिवार था। Now Isaac had become a multi-millionaire. He was much more rich even than Abraham. और इसहाक बहुत पैसे वाला हो गया था, और वो अब्राहिम से भी ज्यादा पैसे वाला था। It is like any other rich family fighting over money, fighting over will, fighting over birthrights. ये परिवार किसी भी एक ऐसे परिवार के समान था जो संपत्ति के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए जिसमें लड़ाई होती है, ये परिवार वैसे ही परिवार के समान था। A believing family must be different. एक विश्वासी परिवार अलग किस्म का परिवार हो। There must be trust and love and forgiveness in that family. एक विश्वासी परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, प्यार हो। यहाँ पर here there is division, cheating, deception, lies, lust. यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है, बंटवारा है, और झूठ बोलना है, धोखा है, and lust. और लालसा है। How is your family today? आज आपका परिवार कैसा है? Is your family a believing, looks like a truly believing family, or is it like this family? क्या आपका परिवार वास्तविकता में विश्वासी परिवार है, या फिर आपका परिवार ऐसा परिवार है? Are you sowing bitterness and division and distrust in your family? क्या आप अपने परिवार में अविश्वास, विनाश को बो रहे हो? And similar thing can happen in the assembly also. It carries over into the assembly. और बिल्कुल ऐसा ही मंडलियों में भी हो सकता है। Unbelievers will think about us what? They are just like us. So why should we come to their assembly? Why should we listen to them? और अविश्वासी इसे देखकर बोलेंगे कि ये तो हमारे ही तरह हैं, हम इनके मंडलियों में, हम इनके पास क्यों जाएं? If this is the way you live, then why should your testimony even matter to them? और यदि आपका जीवन इस तरह से है, तो आपकी गवाही का क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर, आपकी गवाही का? And your life, your family, your assembly is like salt that has lost its flavor and is to be thrown out and to be trodden underfoot. तो आपका परिवार, आपकी मंडली एक ऐसे नमक की तरह बन गई है जिसकी नमकीन जाती रही और जिसको आप फेंक देना ही ठीक है। And you are just waiting for a big blast to happen. और फिर आप एक बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहे हो। And be assured the blast will happen. और निश्चित रहे ये बड़ा विस्फोट होगा। It can take 10 years, 20 years or even 60 years. It will happen. और इस विस्फोट में होने में 10 साल, 20 साल, 60 साल लग सकते हैं, लेकिन विस्फोट होगा। Rebecca was very natural in deception. और Rebecca was very natural in deception. और रेबेका धोखा देने में बहुत स्वाभाविक थी। The moment she heard Isaac say this to Esau, her first feeling was not, I'll go to my husband and tell him, what are you doing? It is Jacob who has the birthright. और जैसे ही उसने एसाव की बात सुनी, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये नहीं थी कि मैं इसाक के पास जाके बोलूंगी तो ये क्या कर रहा है। वो याकूब के पास योजना बनाने के लिए चली गई। She didn't wait for God's time for his plan to be fulfilled. उसने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया कि उसकी योजना पूरी हो। What does she say to Jacob? उसने याकूब को क्या बोला? She says, you go, you get this goat from the flock. I will make tasty meat as your father loves. Please read with me verse 9. और मेरे साथ पढ़ लीजिए कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी।
Just one. I'm just digressing and making this point. See, though Isaac had lust for food, he did not now. His taste was so gone as in old age. He didn't know the difference between deer meat and goat meat. यद्यपि इज़ाक को हिरन का मांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब उसका स्वाद चला गया। वो बकरी के मांस में और हिरन के मांस में अब भेद नहीं कर सकता। And Rebecca says, I'll make tasty food as your father loves. She knew Isaac's weakness. और रेबेका कहती है, मैं तेरे पिता की रुचि के अनुसार एक बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। वो उसकी कमजोरी को जानती है। She knew her husband is a glutton, but she never pointed out his sin to him. वो जानती है उसका पति पेटू है, लेकिन उसने कभी अपने पति को ये बात नहीं बोली। But she used it to her advantage. बल्कि उसने उसका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। Do you do that in your family and in your assembly? क्या आप ये अपने परिवार में, अपने मंडली में अपने फायदे के लिए ऐसा करते हो? You know the sin of your brother or sister, but you will not rebuke them, but you will try to use them to your advantage. आप अपने भाई के पाप को जानते हो, लेकिन अपने भाई के ऊपर उसके पाप को नहीं प्रकट करते, बल्कि उसके पाप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। There is one statement one sister used to say, I will put it in my words. एक बात थी जो एक बहन इस तरह से कहती थी, मैं उसको अपने शब्दों में बोलूंगा। We husbands think I am the head and I give the orders. और हम पति ये सोचते हैं कि मैं मुखिया हूं और मैं आदेश देता हूं। मैं सिर हूं और मैं आदेश देता हूं। मैं सिर हूं और मैं आदेश देता हूं। But the wife says, I am the neck. I can turn the head wherever I want. लेकिन पत्नी सोचती है, मैं तो गर्दन हूं, मैं सिर को जहां चाहूं वहां घुमा सकती हूं। And by giving him this tasty food, she turned Isaac completely. अपने पति को एक बहुत अच्छा खाना देने के द्वारा उसने अपने पति को जहां चाहे वहां पे घुमा दिया। In the Middle East, food मध्य पूर्व में food is for fellowship, to strengthen the bonds of love and affection. खाना संगति के लिए होता है, प्यार बढ़ाने के लिए होता है। But she used food to deceive. लेकिन उसने खाने का इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया। One family I know many years back who used food exactly like that. I can say it in Hindi, मुर्गा खिलाकर मुर्गा बना दिया। और एक परिवार को मैं जानता हूं, बहुत पहले वो खाने का इस्तेमाल इसीलिए करता था, उन्होंने मुर्गा खिलाया और मुर्गा खिला के मुर्गा बना दिया उनका। Do you use food like that? लोग खाने का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। You invite people so that people will sit, and then you take out that time to sow gossip and bitterness and evil in their heart. आप लोगों को अपने खाने पे बुलाते हो और खाने के बाद समय निकालकर सारी बुराइयां करते हो। फिर You say that let us come together for fellowship, brother. You come to my house, we'll have a meal. और आप कहते हो, भाई हम एक दूसरे के संगति करेंगे और आप हमारे घर खाने पे आना। But you do not talk about the love of Christ and the forgiveness of Christ. You rather talk about evil about other people, bitterness. You spread confusion in the heart of other people. आप मसीह के प्रेम और उसकी माफी के बारे में नहीं बात करते, बल्कि आप लोगों की बुराइयां करते हो और लोगों को बांटते हो और उलझने पैदा करते हो। Bit by bit, you trap them into that bitterness. धीरे धीरे करके आप उनको उस कड़वाहट में फंसा देते हो। Now what does Jacob say? अब याकूब क्या कहता है? Rebecca had a complete plan. You take the food, you put on this goat skin, and your father won't find out. और रेबेका के पास पूरी योजना थी। उसकी योजना थी कि याकूब जाए भेड़ की खाल ओढ़कर अपने पिता के पास ये खाना लेकर। So what does Jacob say in verse 12? Please read verse 12, 12 आयत। याकूब क्या कहता है? 12वीं आयत। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाह भी कमाऊंगा। I will be a thug. Hindi is very beautiful. I'll be a thug. I will be a deceiver in his sight. मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा यदि पकड़ा गया तो। He is not worried that I am deceiving. He is more worried I'll be caught. और वो उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं धोखा दे रहा हूं, उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। I am not afraid to sin. I am afraid of getting caught sinning. मुझे पाप करने से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात से लगता है कि मैं पाप करते हुए कहीं पकड़ा ना जाऊं।
I am not afraid to watch what I am watching on the internet, but I am afraid somebody will catch me to what I am watching on the internet. मैं इंटरनेट पे क्या देख रहा हूँ मुझे उस बात से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं क्या देख रहा हूँ उससे उसका पकड़ा ना जाऊं उस विषय में। Most of my students don't mind cheating. They are not afraid to cheat, but they are only afraid I will catch them cheating. मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, उनको कोई फर्क नहीं, उनको इस बात से डर नहीं लगता कि वो नकल कर रहे हैं, उनको इस बात से डरते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। We are not afraid to do the wrong thing. We are afraid somebody will catch us. हमें गलत काम करने से डर नहीं लगता, बल्कि हमें डर इस बात से लगता है कि कोई हमें पकड़ लेगा। Look at Joseph's attitude. यूसुफ के स्वभाव को देखें। He's completely alone in a foreign land. वो परदेश में एकदम अकेला है। Potiphar's wife catches him to have committed adultery with him. और पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया कि उसके साथ व्यभिचार करे। He can easily do it. वो बड़े आराम से कर सकता था। But he says, how can I do this great evil and sin against God, because God is always watching me. लेकिन वो कहता है कि मैं ये बड़ा दुष्ट का काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर निरंतर मुझे देख रहा है। Amazingly, he is this Jacob's son. और बड़े ताज्जुब की बात है, वो यूसुफ इसी याकूब का बेटा है। And that is the amazing thing God did in Jacob's life, that the Lord brought him back. Anyway, we'll come to और ये बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर याकूब को वापस ले, हम बाद में देखेंगे। Children are our reflection. बच्चे हमें दिखाते हैं, हमारी तस्वीर दिखाते हैं। Isaac and Esau both had a difficulty with food. इज़ाक और याकूब की खाना कमजोरी थी। Now I said that Isaac is a multimillionaire, so he'll be having hundreds of servants. इज़ाक बहुत पैसे वाला था, तो उसके बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। Esau comes back home from the hunt, he's very hungry, and Jacob is there, he's making some dal. और ईसाऊ शिकार करके जंगल से आता है और बहुत भूखा है, और याकूब खाना बना रहा है, दाल बना रहा है। The picture I used to imagine was like it's a small, small house, a small hut kind of a thing. This guy is sitting making some dal, and Isaac comes in. So there is nothing else to it, so he'll eat dal. और जो तस्वीर मेरे दिमाग में बनती है कि एक छोटा सा घर है, ईसाऊ आता है और याकूब वहां पे खाना बना रहा है घर के अंदर, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो याकूब से दाल मांगता है। He could have easily ordered a servant. There is no problem. But I believe that Jacob was cooking at that very moment, and he saw that dal, and he said, "Give it to me." और मुझे विश्वास है कि याकूब किसी भी नौकर से मांग सकता था, लेकिन याकूब ने उसी क्षण दाल बनाई, और मौके की तलाश में था वो। And he could not wait even a minute for food. He said, "You give it." And Jacob was he had learned from his mother. He said, "Give me the birthright," and he took it. और वो एक क्षण भी खाने का इंतजार नहीं कर सकता था ईसाऊ, और याकूब ने चाल अपनी माँ से सीखी थी, और याकूब ने एक मिनट नहीं लगाया, उसने बोला कि अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। Immediately Esau's property right became from 2/3 to 1/3. This is the most expensive katori of dal ever. It is worth millions and millions of dollars. और एकदम से एसाव की जो संपत्ति थी वो 2/3 से 1/3 बन गई। ये एक कटोरी दाल की इतनी बड़ी कीमत थी। And when Jacob would have told Rebecca, what would have Rebecca said? Not, "What have you done? This is wrong." She would have said, "Well done, shabash, good." और जब याकूब ने रेबेका को बोला होगा कि, तो रेबेका ने उसको डांटा नहीं होगा कि तूने ये क्या कर दिया। रेबेका ने उसको बोला होगा, ठीक है, बहुत अच्छा किया। Jacob knows that my father will examine me, because my father will examine. He knows my father will examine me. और याकूब को बिल्कुल साफ मालूम था कि मेरा पिता जांचेगा कि मैं कौन हूँ। Because my father doesn't trust us. क्योंकि मेरा पिता हम पे भरोसा नहीं करता। And Isaac did examine, because he knew they can deceive me. He didn't trust them. और इज़ाक ने उनको जांचा कि ये याकूब है कि एसाव है, क्योंकि एसाव उनके ऊपर भरोसा करता ही नहीं था। There is no trust in this family. इस परिवार में कोई भरोसा नहीं था। How painful it is that you cannot believe a believer's words today. कितनी दर्द की बात है, आप एक विश्वासी के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। Whether it is money issues, assembly issues, or it is about time in the workplace, a believer can easily lie in small things.
चाहे पैसे की बात हो, काम की बात हो या मंडली में किसी बात की बात हो, आप उनके शब्दों के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते। But the bigger thing is believers are smarter. They speak in gray areas. और विश्वासी तो बहुत चालाक है, वो तो ग्रे एरियाज वो ग्रे एरियाज में बात करते हैं। It is neither truth nor lie. So you वो can't ऐसे catch बोलते them. हैं वो ऐसे बोलते हैं, ना तो झूठ होता है ना सच होता है। The Lord said for a believer, yes is yes, no is no. और परमेश्वर कहता है कि विश्वासी के लिए हाँ हाँ है और ना ना है। How many times I have done it? In my workplace, I have spoken the truth on the very borderline. और मैंने कितनी बार अपने काम के स्थान में ऐसा किया है। मैंने सच को बिल्कुल किनारे, बॉर्डर लाइन मतलब एज पे, बिल्कुल किनारे पे बोला। बिल्कुल किनारे पे बोला है। So I can justify my conscience has spoken the truth. जी, So that I can justify my conscience that I have spoken the truth. ताकि मैं अपने विवेक को बता सकूं कि मैंने तो सच बोला है। अरे, even unbelievers who hate you would be able to say, this man will never speak a lie. रिपीट कर दे भाई। Even unbelievers who hate us should be able to say about you, this man can be totally trusted. He will never speak a lie. वो अविश्वासी जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपके बारे में ये बोल सके कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। Their children learned from them. उनके बच्चे उनसे सीखते हैं। What are you teaching your children? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? When at the dinner table or in your home you speak against believers, against neighbors, against relatives, they learn all that. और जब आप खाने की मेज पर विश्वासियों के विरोध में बोलते हो, पड़ोसियों के विरोध में बोलते हो, दूसरे के विरोध में बोलते हो, तो आपके बच्चे उस समय आपकी बातों से सीख रहे होते हैं। When in families we speak against caste, religion and class, we are sowing the seeds of hatred in their heart. और कई परिवार जाति के बारे में, स्तर के बारे में अपने बच्चों के सामने बोलते हैं, और ऐसा बोलने के द्वारा बच्चों के मनों में नफरत और बंटवारा डाल रहे हो। I have seen this even in myself, the things I have heard in my childhood, even now I am getting free from that bit by bit. मैंने ये बात अपने परिवार में देखी है, जिन बातों को मैंने अपने बचपन में सीखा, अब धीरे धीरे करके अब मैं उन बातों से आजाद हो रहा हूँ। So the consequence of this whole drama is a big blast. Read verse 33. और इस पूरे नाटक का अंत एक बड़े विस्फोट में होता है। पढ़िए आयत 33वीं आयत। So just before that, बिल्कुल उससे पहले, Jacob has deceived his father that I am Esau, and Isaac has blessed him. और याकूब ने अपने पिता इसाक का धोखा दे दिया है और बोला कि मैं इसाव हूँ। Now Esau actually comes back, and Isaac realizes that I have blessed the wrong son. I mean, the one he didn't want to bless, he blessed the other one. अब एसाव आता है और इसाक को पता चलता है कि मैंने तो गलत व्यक्ति को, याकूब को आशीष दी है। So verse 33. 33वीं आयत। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। And then next verse. अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, When this blast happened, Isaac trembled exceedingly. जब ये बड़ा विस्फोट हुआ, इसाक कांप गया, बुरी तरह कांप गया। Esau wept exceedingly. इसाक बड़ी फूट के रोया। And everything was destroyed in their home. They bombed their own home. और जब सब कुछ नाश हो जाता है तो उन्होंने अपने घर में they have bombed their own home. और उन्होंने अपने घर में विस्फोट कर लिया। This started 60 years back. ये इसकी शुरुआत 60 साल पहले हुई थी। A little leaven leavens the whole lump. Bit by bit the leaven kept on working. एक थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को पूरा खमीरा कर देता है, धीरे धीरे करके। Is there something in my family that has been growing for years and my wife and I have not examined?
क्या मेरे परिवार में मेरी पत्नी के में कुछ ऐसी बात है जो है जिसको मैं नहीं जांच रहा हूँ? Am I waiting for a big blast to happen in the days to come in my home? क्या मैं मेरे परिवार में आने वाले समय में कुछ बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहा हूँ? I honestly tell you, when I was seeing this yesterday, I went over to Megha and I said, Megha, you and I need to spend one day in prayer and really ask the Lord to examine us. Is there something we have sown in the past years? और जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था तो मैं अपनी पत्नी मेघा के पास गया और उनको बोला कि हमें एक दिन प्रार्थना में बिताना चाहिए कि क्या कुछ है जो हमने अपने परिवार में बोया है पिछले सालों में। One thing is very clear. एक बात बहुत साफ है, and it is the use of internet, YouTube and social media. और ये है इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। She works the whole day, I work the whole day, meeting is done, it's about 10:30 the night, then I think I want to relax. और मैं पूरे दिन काम करता हूँ, वो पूरे दिन काम करती है, फिर शाम को मीटिंग होती है, फिर मैं सोचता हूँ मैं अब आराम करूंगा। I'm truly tired. और मैं पूरा थका हुआ होता हूँ। I have begun working right from about 6:30, 7 o'clock in the morning, and now it's about 10:30 in the night, so I'm truly tired and I want to take a break. और मैं 6:30 बजे सुबह से काम में लग जाता हूँ और शाम को 10:30 बजे तक काम करता रहता हूँ और मैं वास्तविकता में थक जाता हूँ और मैं सोचता हूँ थोड़ा आराम करूँ। Rather than spending time talking to each other, fellowshipping with each other, I am spending time on the internet. इसके बजाय कि मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊं, कुछ बात करूं, मैं इंटरनेट पे समय बिताता हूं। What is happening? Slowly, bit by bit, we will not realize it. Even if we love each other, our distance will keep on growing, and we are realizing it. और धीरे धीरे क्या होगा, मैं इंटरनेट पे समय बिताता हूँ और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और मैं इसका एहसास कर रहा हूँ। When we don't spend time with the Lord, our distance grows. When we don't spend time with our family, our distance will definitely grow. यदि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे और हम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताएंगे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और दूरियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी। Tier 1 social media, internet, YouTube is really a problem, I believe, for most of us. प्रिय भाई बहनों, इंटरनेट और सोशल मीडिया वास्तविकता में हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। You know, if you waste 1 hour in one day, यदि आप एक दिन में 1 घंटा बर्बाद कर देते हो, you are wasting 365 hours in a year. That is equal to 1.5 month of 8-hour days. और आप पूरे साल में 365 घंटे इस्तेमाल करते हो और बर्बाद करते हो, और कितने दिन भाई? That is equal to 1.5 month of 8-hour days. यानी कि डेढ़ महीना बर्बाद करते हो एक 8 महीने के दिन का, 8 घंटे के दिन का, 8 घंटे के दिन का। Just imagine how much time has been wasted, but I don't realize it. कल्पना कीजिए आपने कितना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं इस बात का एहसास नहीं कर पाता। In the end, this family was completely scattered. और आखिर में ये परिवार बिल्कुल बिखर गया। Isaac lived for another 40 years, but the Lord never used him again. He made him to lie and rust. और इज़ाक इसके बाद 40 साल तक जिया, लेकिन परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, उसे जंक लग गया उसको। Rebecca still did not learn. She was still scheming after this because Esau wanted to murder Jacob. और रेबेका ने भी इसके बाद कुछ नहीं सीखा और फिर इसके बाद भी वो योजना बना रही थी क्योंकि एसाव याकूब की हत्या करना चाहता था। She made a scheme and convinced Isaac to send Jacob away to Haran. तो उसने एक योजना बनाई और याकूब को विश्वास दिलाया कि तू यहाँ से भाग जा। And she said, you'll be gone only a few days, but that few days turned into more than 20 years, and Rebecca never saw the apple of her eye ever again. और उसने तो बोला था कि ये कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात 20 साल लंबी हो गई और फिर उसके बाद रेबेका ने अपने आंख के तारे को फिर कभी नहीं देखा। She died without ever meeting Jacob again. रेबेका याकूब से बिना मिले मर गई। Esau went his own way and was lost forever. एसाव अपने रास्ते पे चला गया और हमेशा के लिए नाश हो गया। Jacob was a chosen one. The Lord fulfilled 8:28 and he came back.
he was restored back and he built the house of Israel. और याकूब तो परमेश्वर का चुना हुआ था और परमेश्वर याकूब को लौटा के लेके आया और इजराइल का घराना बनाया। The only person whose fate was different was Jacob, only because the Lord had said, I will have mercy on whom I will have mercy, not because he was any better than all the rest of them. सिर्फ एक व्यक्ति का विश्वास जो एकदम अलग था वो था याकूब, और वो भी इसलिए कि परमेश्वर ने याकूब से प्यार किया था और बोला था कि मैं जिससे प्यार करूंगा उससे प्यार करूंगा। Nobody behaved like a believer in this family. Nobody trusted anyone. इस परिवार में कोई भी जन एक विश्वासी की तरह व्यवहार नहीं करता था, कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता था। All are to blame for this complete disaster. और इस पूरे नाश में इन सब का दोष था। Many times in an assembly, everybody is to blame. कई बार मंडली में सबका दोष होता है। When we sow thorns, we will not reap mangoes. जब हम कांटों को बोएंगे तो हमें आम नहीं मिलेंगे। It says in Song of Songs 2:15. Quickly read it and we'll quickly end. Song of Songs 2:15. श्रेष्ठ गीत 2:16। भाई आप देख लीजिए। 2:15. हाँ, श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। Yeah, the vine that gives us gladness and happiness. These little foxes destroy the vine from the root. वो जो दाख की बारियों में जो फूल लगे हैं, जो हमें दाखरस देती है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां इस दाख की बारी को बिगाड़ देती हैं। And these are little foxes. You can't easily catch them. So they creep into our homes. और ये लोमड़ियां छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, आप इन्हें पकड़ नहीं सकते, और ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे घरों में घुस कर चली जाती हैं। This beautiful, loving hope of Isaac and Rebekah was destroyed by these little foxes. और ये छोटा सा प्यारा सा इसाक और रेबेका का परिवार ये छोटी छोटी लोमड़ियों की द्वारा बर्बाद हो गया। Immorality, jealousy, ego, unforgiveness, all this creep in. और अहम, घमंड, अनैतिकता और अविश्वास सब इनके परिवार में आ गया। Sometimes it is a little tongue that is set on a great fire, James says. और याकूब कहता है कभी कभी ये छोटी सी जुबान से बड़ी आग लग जाती है। And he says it is a poison. और वो कहते हैं कि एक जहर है। I saw the husband is going to work, he will say harsh words to his wife. और मैंने देखा है जब पति काम पे जाता है तो अपनी पत्नी से बड़े कठोर शब्द में बोलता है। And he will go by banging the door. और वो जाता है तो दरवाजा पटक के जाता है। Comes back in the evening, he has completely forgotten the wound he has caused his wife. और जब वो घर आता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसने अपनी पत्नी को क्या बोला था। He doesn't heal it with the balm of a sorry. और वो अपनी पत्नी से माफी नहीं मांगता, वो अपनी पत्नी को चंगा नहीं करता माफी मांग के। This multiplies the bitterness. और इससे कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। Hebrews says a root of bitterness that springs up. That means it is a little root. He said, crush it by the cross of Christ. Otherwise, it will make many people bitter. और ये छोटी सी जड़ बढ़ती चली जाती है, और ये छोटी सी कड़वाहट की जड़ को तभी इसको काट कर उसका नाश कर दो, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कड़वाहट से ये भर देगी। Ecclesiastes 10 says a little folly causes a lot of damage to a man of good reputation. Ecclesiastes says that a little folly, Ecclesiastes 10:1 says a little folly causes a lot of damage to a man of good reputation. एक छोटी सी गलती एक बड़े अच्छे आदमी को बिगाड़ देती है। And so we have the example of Moses. उदाहरण के लिए मूसा का उदाहरण। People are murmuring, he gets angry. लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और गुस्से में हैं। And he loses it all. He becomes completely frustrated. He says, shall we bring water for you? Shall we? Bring water out for you? क्या हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आए? I am doing all this for you. We are doing all this for you.
अब मैं तुम्हारे लिए, हम ये तुम्हारे लिए सब इतना कर रहे हैं। And in anger, he hits the rock twice out of frustration. और बड़ी खिसियात में उसने चट्टान को 2 बार मारा। This man who had such a tremendous reputation, a little folly is a black mark on him. और ये आदमी जिसने इतना बड़ा काम किया, एक छोटी सी बेवकूफी से इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। Now, why couldn't God just let it go? जी भाई, Why couldn't God just let this incident go just like that? परमेश्वर ने इस घटना को यूं ही छोड़ क्यों नहीं दिया, जाने दो? Because people would have thought God is like that. God becomes angry on small issues. God is spiteful. और ताकि लोग ये सोच ले कि कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता है। And because Moses was God's representative. क्योंकि मूसा परमेश्वर को दिखाता था। Sin will come. पाप आएगा। They will bother us, you and I. और हमें कचोटेगा वो। These little foxes will try to ruin our vineyard. ये छोटी छोटी लोंडियां हमारे दाख की बारी को बर्बाद करेंगी। But the grace of God is that the Lord's table is the checkpost. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए जांच करने की जगह होती है। I will not carry anything wrong in my journey ahead. मैं अपने आगे की यात्रा में कुछ भी गलत लेकर नहीं बढ़ूंगा आगे। I will leave it here at the foot of the cross. हम उसको जो कुछ भी है उसको क्रूस पे डाल दे। Confess it and be washed in the blood of Christ forever. और उसको मान ले और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दे हमेशा के लिए। Examine yourself. अपने आप को जांच ले deeply. गहराई से। Search me, your God, and know my heart. मुझे जांच और मेरे हृदय को जांच दे। Lord, search my home. मेरे घर को जांच। Is there anything growing that I do not know? क्या कुछ ऐसी बात है जिसे मैं नहीं जानता जो बढ़ रही है मेरे घर में? Lord, is there a big blast going to happen in my life, my family, my assembly? परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी मंडली में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। Let us examine ourselves. अपने आप को जांच ले। Don't take sin lightly. पाप को हल्का ना ले। If there is something in your life, in your home that is wrong, correct it in the sight of Christ. यदि कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में, आपके परिवार में गलत है, तो परमेश्वर की दृष्टि में उसे ठीक कर ले। All you have to do is repent. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ पश्चाताप करना है। Otherwise, there is going to be a big blast. नहीं तो एक बड़ा विस्फोट होगा। And it will completely destroy your home. और ये आपके परिवार को पूरी तरह से नाश कर देगा। I truly request you, don't take God lightly. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. मैं आपसे सच में विनती करता हूँ, परमेश्वर को हल्का ना लें और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। Please repent if there is anything wrong that you find. और यदि आपके जीवन में कुछ भी आपको गलत मिलता है तो आप पश्चाताप कर लें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।